أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ڈاکٹر محمد محسن عباس جعفری، یہ میرا نام ہے۔ کون کون بچہ واقف ہے اس نام سے؟ کوئی بچہ واقف ہے اس نام سے؟ ہاتھ کھڑا کریں، دکھائیں بھائی بچوں کو، بچے اس نام سے واقف ہیں۔ میں آتا رہتا ہوں آپ کے پاس، کچھ نہ کچھ بتا کے جاتا ہوں۔ ایک دو بچوں کو نہیں پتا، ان کو کیوں نہیں پتا بھائی؟ آپ کو نہیں پتا، آپ نئے بچے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتا، پھر آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اچھا ایسے کیا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ میں کیا کرتا ہوں بچوں، آپ کو کس بارے میں بتاتا ہوں، کیا بات ہوتی رہتی ہے ہماری، تھوڑا سا 2 منٹ میں بتا دیں گے؟ کوئی بچہ کھڑا ہو کے بتا دے، جب میں آتا ہوں کس بارے میں بات کرتا ہوں، کیا بات کرتا ہوں، کوئی ہے تھوڑا سا آئیڈیا؟ ہاں ویری گڈ، ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ، شاباش۔ اور بچہ کوئی؟ ہیلتھ کے بارے میں بتاتے ہیں، جانوروں کی ہیلتھ کے بارے میں بتاتے ہیں، انسانوں کی ہیلتھ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ان کی ویکسین کے بارے میں بتاتے ہیں، انسانوں کی خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج بھی اس طرح کی کوئی ملی جلی بات انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک میں نے یہاں پہ فرمان لکھا ہے معصوم کا، 3 چیزیں دنیا اور آخرت کی خوبیوں میں سے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، جس نے تم پر ظلم کیا، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت مشکل بات ہے، میں بھی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی، آپ بھی پوری کوشش کریں، اس بات پہ عمل کریں۔ نمبر 2، جو تم سے تعلقات توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے تعلقات توڑے تم اس سے جوڑو۔ تو جو اس طرح کا بچہ اور نوجوان اور کوئی مرد اور کوئی اس طرح کے لوگ جب ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گے تو کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ ظلم و زیادتی پہ تلا ہوا ہے اور دوسرا اسے معاف کر دیتا ہے، ایک بندہ تعلقات توڑنے پہ تلا ہوا ہے اور دوسرا بار بار اس سے جوڑتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے نرم مزاجی سے پیش آتا ہے۔ یہ فرمان معصوم ہے، یہ ہمارے آئمہ جو 12 آئمہ ہیں ان کے فرامین میں سے ہے، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے یہ۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی، جو تمہاری توہین کرے تو تم تحمل سے کام لو۔ توہین ہوتی ہے نا، انسان کی ایک عزت نفس ہے، ہر بندے کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو باعزت بنایا ہے، محترم بنایا ہے، اور کوئی بندہ اس کو آ کے گالی گلوچ کرے، اس کی بے عزتی کرے، یا حتیٰ کہ گالی گلوچ بھی نہ کرے، صرف اس سے بے رخی کرے۔ بے رخی کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ملنے، آپ اسے سیدھے منہ سے بات ہی نہ کرو، یہ بے رخی ہے، یہ بھی توہین ہے اس انسان کی جو آپ سے ملنے آیا، یا آپ سے وہ بات کر رہا ہے، یا آپ سے بڑی عزت و احترام سے وہ آپ کے گھر آیا ہے تاکہ جا کے کوئی اچھی بات سننا ہوں، یا کوئی اچھی بات کر رہا ہوں، یا اچھی بات سنا ہوں، کیونکہ فرامین میں سے ہے
کہ اپنے عزیزوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس صلہ رحمی کرتے ہوئے جایا کرو، ان سے ملا کرو۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات میں سے ہیں یہ ساری چیزیں، اور ہم ان پر عمل کرتے ہوئے ہم جائیں اور آگے کوئی بھی عزیز ہمارا ہم سے اچھے طریقے سے بات ہی نہ کرے اور ہماری توہین کرے، پیٹ پھیر کے بیٹھ جائے، پشت دکھا کے بیٹھ جائے، چہرہ پھیر کے بیٹھ جائے، سیدھے منہ بات ہی نہ کرے، تو پھر بندہ ایڈے پاروں لنگ کے وہ کیا ہے یار وہ سنانا تھوڑا جا میں بھول گئے، ملن جو آگے کانڈ کر باوے ارمان تا لگتا ہے، وہ توہین ہوتی ہے انسان کی، وہ انسان کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا ہے؟ جو تمہاری توہین کرے، جو اس طرح کی بے رخی کرے، تکلیف تو ہوگی لیکن تحمل کرنا ہے۔ تحمل کا مطلب ہے برداشت کریں، اور برداشت کر کے ہمت کر کے پھر کوشش کریں اور پھر جائیں اور پھر تعلقات جوڑیں۔ یہ ایک میسج ہے آپ بچوں کے لیے، اور آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا، میں بھی عمل کروں گا۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، پاکستان کو فتح ملی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ انڈیا نے ظلم اور زیادتی پاکستان پہ سب سے پہلے کی۔ سب سے پہلے پہلگام میں انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، اور اس ڈرامے کے ذریعے پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام پر ایک پریشر ڈالا اور ایک جنگ مسلط کی، اور پھر ہماری پاکستان آرمی نے بڑی محنت سے، بڑے پیشہ وارانہ انداز سے اور بہترین صف بندی کر کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی سے انڈیا والوں کو جو جواب دیا ہے، اس کا مزہ آ گیا ہے، تو اس پہ تالیاں بنتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، تو پاک آرمی زندہ باد، اور چیف آف آرمی سٹاف سید حافظ منیر احمد شاہ صاحب زندہ باد، کیونکہ بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور جنگ لڑنا اور جنگ میں فتح حاصل کرنا یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ ہماری شان ہے۔ یہ جو باقی لوگ ہیں نا جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ جرت ہی نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت، قوت، بہادری، شجاعت، ہمت، حوصلہ دیا ہوا ہے، یہ کلمے کی بدولت دیا ہوا ہے، کلمے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس لائق کہ عبادت کی جائے اس کی سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ انڈیا کیا چیز ہے؟ ان کی فورسز کیا چیز ہیں؟ ان کی حکومت کیا چیز ہے؟ یا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت جو اپنے آپ کو طاقت سمجھتی ہے، وہ کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا توحید پر ایمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے صرف جھکتے ہیں۔ ہم لوگوں سے، عام لوگوں سے، کسی سے بھی ہم نہیں ڈرتے، اور یہی بہادری ہمیں جتوا دیتی ہے اور ہم جیت جاتے ہیں۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان آرمی کا، پاک فضائیہ کا، اور پوری آرمڈ فورسز، یعنی جتنی بھی فورسز ہیں ہماری، جس میں پاکستان نیوی بھی ہے جو بحری سمندروں میں جو کام کرتی ہے، فوج ہے ہماری، اس کو پاکستان نیوی کہتے ہیں، بحری فوج، اور جو بری فوج ہے جو زمین پہ
काम करती है और डिफेंस करती है और महफूज रखती है, पाकिस्तान को हिफाजत करती है बॉर्डर्स पे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो फिजाई फौज है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सिर्फ ये 3 फौजें नहीं हैं, इनके अलावा आजकल आप देख लें सोशल मीडिया, ये भी एक जंग का हथियार है जो दुश्मन ने हमारे खिलाफ चलाया हुआ है। दुश्मन कौन है हमारा? यही दुश्मन है जो आपको नजर आ रहा है, जिनके खिलाफ हमने फतह हासिल की है। इन्होंने क्या किया हुआ? फेक न्यूज फैलाई हुई है, जेली खबरें फैलाई हुई हैं। लो जी ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, पाकिस्तान अभी अभी खत्म हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी अभी जनाब अवाम आर्मी के खिलाफ हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, और अभी इंडिया जीत जाएगा। और जनाब अपने अपने पाकिस्तानियों को, नौजवानों को, उनके दिमागों को हाईजैक किया हुआ है, उनके दिमागों को खराब किया हुआ है। उनके दिमागों में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नफरत फैलाई हुई है इस सोशल मीडिया के जरिए, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है और इंतहाई गलत बात है। हमने अपनी फौज के साथ हमेशा शाना बशाना रहना है, उनकी मोरल सपोर्ट करनी है, अखलाकी सपोर्ट करनी है, और हर नमाज के बाद उनकी सलामती के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों की सलामती के लिए, पूरी दुनिया के, चाहे वो जहां भी रहते हैं, फलस्तीन में है, ईरान में है, कश्मीर में है, अफगानिस्तान में है, जहां भी हैं, पाकिस्तान में है, हत्ता कि इंडिया में भी जो मुसलमान हैं सबकी, उन सब की भी सलामती के लिए दुआएं करनी है। और कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ और अपने मुल्क के मुहाफिजों के खिलाफ, मुहाफिज कौन है? ये आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हमारी मुहाफिज है, उनके खिलाफ कभी भी हमने कोई सोच नहीं रखनी और कभी भी हमने उस सोच को आगे फैलाना नहीं है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि दुश्मन हमारा मजबूत हो जाएगा। अगर एक घर में 10 बंदे रहते हैं या 5 बंदे रहते हैं, एक वालिद है, 2 4 6 बच्चे हैं उसके, और कोई तीसरा बंदा उन बच्चों का दिमाग खराब कर दे और उन बच्चों को अपने वालिद या वालदा के खिलाफ भरना शुरू कर दे, दुश्मनी पैदा करना शुरू कर दे, और वो बच्चा उन पे चल जाए, उनकी बातों में आ जाए, तो नुकसान किसका होगा? उस घर का होगा ना। फायदा कौन उठाएगा? वो दुश्मन जो तीसरे किसी और घर का है। बाप और बेटे आपस में लड़ाई करेंगे तो नुकसान किसका है? उन बाप बेटों का है। और फायदा कौन उठा रहा है? वो दुश्मन जो बाहर का है। यही हाल हो रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क की अवाम को अपने मुल्क की फौज के साथ लड़ाया जा रहा है, उनके खिलाफ किया जा रहा है, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ पड़े और जो दुश्मन बाहर का है उसको ज्यादा फोर्स, ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े जीतने के लिए, और वो आराम से आके कब्जा कर ले। तो इस साजिश को आपने समझना है, और ये मैं आपको समझा रहा हूं, और हमेशा इस पे अमल करना है आपने। कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी बात कहीं भी हो रही हो, उसको वहीं रुकवा देना है। अपनी आर्मी के खिलाफ, अपने मुल्क के मुआवजों के खिलाफ कभी सोच नहीं रखनी, उनकी सपोर्ट करनी है, उनके साथ। लोग क्या फैलाते हैं जी, ओ जी पैसा खा रहे हैं, ओ जी बजट खा रहे हैं, ओ जी इतना खर्चा करा रहे हैं, ओ जी अवाम बड़ी तंग है, अवाम पैसा भर रही है, अवाम के बिजली के बिल आ रहे हैं, अवाम परेशान। ओ भाई जी बात यह है, मिसाइल बनाने पे पैसा लगता है, टैंक बनाने पे पैसा लगता है, और जहाज बनाने पे पैसा लगता है, और जब ये सारी चीजें होंगी तो जाके दुश्मन के ऊपर हमला भी करेंगे और उनके हमलों को रोकेंगे भी सही। और जब ये सारी चीजें हो ही ना, तो 12 लाख फौज क्या करेगी? कुछ कर सकेगी? फर्ज किया मेरे पास ये पॉइंटर ही ना हो, तो यहां मैं क्या लिखूंगा?
फौज तो हो, फौज के पास पैसा ना हो, वेपन ना हो, हथियार ना हो, असला ना हो, लड़ने के लिए कुछ भी ना हो, वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन सब चीजों की उन्हें जरूरत है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और वो पैसा खर्च होता है, फिर जाके हिफाजत होती है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? दानिश, आपको आ रही? तो मैसेज क्या है आप बच्चों के लिए? मैसेज ये है कि हमने हमेशा पाकिस्तान का साथ देना है, पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी का साथ देना है। और छोटे मोटे कोई अगर किसी के जहन में, बच्चों के, बड़ों के इर्द गिर्द इलाके में आप आपस में कोई भी इख्तलाफात अगर हैं, उनको ख़त्म कर दें, मुल्क और कौम एक बन जाए, और मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए सारे मिलकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, और इस फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। इंडिया बड़ी बड़के मारता था जी, हम ये कर देंगे, हम मिलियमेट कर देंगे, नौज़बिल्ला, हम फलां कर देंगे। तो उन्होंने हमला किया, बहावलपुर पे किया, मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फरगढ़ में, इधर उधर पता नहीं कहां कहां किया, 6 जगहों पे, या कोई कहता है 9 जगहों पे हमला किया। पहला हमला तो 1, 2, 3 दिन हो गए, पाकिस्तानी अवाम भी बातें कर रही थी, लो जी जवाब ही नहीं दिया, ओ जी कुछ ही नहीं कर सकते, पाकिस्तान आर्मी का कोई हाल नहीं। और वो इस दौरान प्लानिंग कर रहे थे, चीजें सेट कर रहे थे, हमला कैसे करना है, कहां कहां करना है, किस जगह करना है। हमला करना कोई बड़ी बात नहीं होती, कामयाब हमला करना बड़ी बात है, कि जो हमला करें वो कामयाब हो, ये फतह होती है। अब उन्होंने भी तो हमला किया है, वो हमने उनको नाकाम बनाया है, तो ये भी उनकी शिकस्त है। और फिर हम भी हमला करें, हम भी नाकाम होके बैठ जाएं, तो वो हमारी भी शिकस्त होगी। तो उन्होंने पहले प्लानिंग की है, उस पर टाइम लगा 2-3 दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा डिफेंस सिस्टम सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ने काबू में किया है, उसको नाकाम बनाया है। जो मिसाइल इन्होंने भेजने थे, जो जहाज, जंगी जहाज भेजने थे, उन्होंने जो वापस हमले के लिए जो तैयार किए हुए थे, पहले उनको काबू किया है, ताकि वो उड़ ही ना सके, ताकि हमारे जहाजों को वो तबाह ही ना कर सके जब हम यहां से जाएं। हमारे जो भेजे हुए रॉकेट हैं, उनको नकारा वो ना बना सके, ये सिस्टम पहले काबू में किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है, बड़ी महारत चाहिए इसके लिए, बड़ी मेहनत और इल्म और नॉलेज और जहन चाहिए। ये पाकिस्तानियों ने किया है। हम कहते हैं जी लो जी पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है। पाकिस्तान आर्मी भाईजान इतनी मेहनत से कर रही है कि आप रात को बड़े मजे से सो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, कोई परेशानी नहीं होती। और हम परसों गए बहावलपुर, हमने लाइव देखा, ड्रोन इंडिया ने भेजे और पाकिस्तान ने उनके ड्रोन वहीं नाकाम बनाए, फिजा में उनको वहीं डिस्ट्रॉय किया, वहीं तबाह किया, वहां पे डिसॉल्व किया फिजा में। अगर पाकिस्तान आर्मी अलर्ट ना होती, एक्टिव ना होती, तो वो ड्रोन आ गए थे ना, हमला करना था ना, उन्होंने नुकसान होना था ना, और हम नीचे से बड़े मजे से इंजॉय कर रहे थे। जंग इंजॉय कर रहे हैं हम, किसकी वजह से? डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से और आर्मी की वजह से। आर्मी लड़ रही है ना। डॉक्टर कदीर खान ने माशाल्लाह एटम बॉम्ब बनाया, मेहनत की, बना के दिया, और जिनको अब बना के दिया है वो उसके मुहाफिज हिफाजत कर रहे हैं और फिर जंग लड़ रहे हैं, तो ये आम बात तो नहीं है, ठीक है ना। उस वक्त हम इंजॉय कर रहे थे, दुनिया सारी इंजॉय कर, कोई पिज्जे खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, और ऊपर जंग हो रही है, ऊपर जंग हो रही है। ये देखें, ये पाकिस्तान आर्मी कितनी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, वरना जंगें इतनी इंजॉयबल कहां होती हैं। 1965 की जंग देख लें, 1971 की देख लें, उससे पहले 1948 में भी एक हुई है, ठीक है ना।
बड़े उसमें बड़ी परेशानियां हुई हैं। तो शुक्र है, तो ये इतने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फोर्सेस हमारे पास हैं। तो हमेशा अपनी फोर्सेस के साथ रहें। और आज का मैसेज ये है कि जी हम जो वेटनेरियन हैं, वेटनरी डॉक्टर्स और हमारा सारा पैरा वेटनरी स्टाफ जो जानवरों से मुताल्लिक मामलात हम संभालते हैं, हमारी अहमियत क्या है, हमें हमें आपको बताना चाहिए ना कि हम क्या करते हैं। हमारा काम यह है कि हम आपको, आपके जानवरों को जो बीमार जानवर हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनको सेहतमंद रखने में वैक्सीन टाइम पे करते हैं ताकि जानवर आपके बीमार ना हो, आपके जो फजूल खर्चे हैं उनकी बीमारियों के इलाज पे वो ना हो, आपकी मईशत मजबूत हो। आपके जानवर जितने ज्यादा सेहतमंद होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो ये हमारा रोल है, ये हमारी इंपॉर्टेंस है। और हम कोशिश करते हैं कि जो खुराक है ना, जानवरों से हासिल होने वाली खुराक क्या क्या है। नंबर 1 मिल्क, नंबर 2 मीट, और पोल्ट्री से एग्स, ये खुराक है ना। ये जो खुराक हासिल होती है जानवरों से, ये अच्छी सेहतमंद खुराक हो। वो कैसे होगी? जब जानवर सेहतमंद होंगे। और वो जानवर कैसे सेहतमंद होंगे? जब वेटनरी डॉक्टर्स और उनका जो अमला है उस इलाके में सही टाइम पर जानवरों को हिफाजती टीके लगाएगा और लगवाएगा। और अगर फिर भी कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसका सही टाइम पर सही इलाज करेगा, तभी वो सेहतमंद हो जाएगा। फिर वो सही दूध देगा, अच्छा दूध देगा, सेहतमंद दूध देगा, अच्छा गोश्त पैदा करेगा वो जानवर, और वो हमारे काम आएगा। तो ये वेटनरी या वेटनेरियन, वेटनरी डॉक्टर या वेटनेरियन या उसके पैरा वेटनरी स्टाफ, वेटनरी असिस्टेंट, एआई टेक्नीशियंस और उसके साथ बाकी जितना अमला होता है, उन सब का ये रोल है, ये उनकी अहमियत है, ये उनका काम है। बात समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? आवाज आनी चाहिए। बोर हो रहे हैं? गुड। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक क्या है? लाइफ स्टॉक की इंपॉर्टेंस तो मैं कई दफा बता चुका हूं कि उनकी लाइफ स्टॉक कहते किसको है? गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कैमल है, हर वो जानवर जिससे हम दूध, गोश्त हासिल करते हैं और प्रॉफिट हासिल करते हैं बेचकर, वो लाइफ स्टॉक है। और पोल्ट्री क्या है? हर वो परिंदा जिसे बेचकर प्रॉफिट हासिल करें या उसका गोश्त खाएं या उसके अंडे खाएं, वो पोल्ट्री है। और जो लाइफ स्टॉक है वो मैंने बता दिया, जिनका दूध और गोश्त और खाले वगैरह भी यूज करें और उनको बेचकर हम प्रॉफिट हासिल करें, वो लाइफ। तो लाइफ स्टॉक की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? उससे दूध हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है, उनसे बाकी खालें हासिल होती हैं और उनको हम बेचते हैं, उनसे हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये उनकी इंपॉर्टेंस है। और ये सारी चीजें हमारे काम की हैं, कि नहीं है? ठीक हो गया, ये उसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता चल गया लाइफ स्टॉक। इसी तरह लाइफ स्टॉक के अलावा जो एनिमल्स हैं, मसलन गधा है, घोड़ा है, डॉग है, कैट है, उनकी भी अहमियत है। ये नहीं है कि उनकी अब अहमियत नहीं है। उनकी क्या अहमियत है? गधे को हम कोई चीज उठाने के लिए, घास वगैरह, ये वो गधा रेडी यूज करते हैं ना, घोड़े भी इसी तरह यूज होते हैं। डॉग लोग शौकिया रखते हैं, हिफाजत के लिए रखते हैं। कैट्स बतौर पालतू पेट के तौर पर, पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं और भी बड़े इसके फायदे होंगे। ठीक हो गया। और फिर बेचकर उनसे फाइनेंस यानी पैसा भी कमाते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं जानवरों को, कोई भी जानवर हो। तो और इसके अलावा ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो हलाल चीजें हैं, जिन्हें हम खाते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, इन सब का अल्टीमेट फायदा हमें है। हमें क्या फायदा है भाई? हम सेहतमंद होते हैं,
प्रोटीन हमें मिलती है उनसे, हमारी हेल्थ ठीक होती है, कुव्वत मुदाफियत हमारे अंदर पैदा होती है। जो इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जरासीम फैले हुए हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो सारे जरासीम हम पर हमला आवर होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जब हम सेहतमंद होते हैं, सही खुराक खाने की वजह से, सही दूध पीने की वजह से, और गोश्त टाइम पे मिलता रहता है, प्रोटीन मिलती रहती है, तो कुव्वत मुदाफियत हमारे अंदर पैदा होती रहती है, तो और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो अच्छी खुराक का मिलते रहना बहुत जरूरी है ताकि हम सेहतमंद रहें। और अच्छी खुराक उस वक्त मिलेगी जब अच्छे जानवर हमारे पास होंगे, सेहतमंद जानवर होंगे, और वो अच्छे सेहतमंद जानवर सही टाइम पे वैक्सीन जिनकी होगी, सही टाइम पे इलाज जिनका होगा वो होंगे, और वो हम करेंगे वेटनेरियंस। तो चेन समझ आई है, सारी चेन समझ आई है ना, कि हमारी हेल्थ से ये सारी चीजें वाबस्ता हैं। वेटनरी डॉक्टर का असल काम यह है कि हम सब इंसानों को सेहतमंद खुराक प्रोवाइड करता रहे, जानवरों की सेहत के जरिए से, जानवरों को सेहतमंद रखने के जरिए से, जानवरों को सही टाइम पे वैक्सीन करके, उनका सही टाइम पे इलाज करके। बात समझ आ रही है? तो वेटनरी डॉक्टर की अहमियत आपको समझ आ गई होगी। आजकल हमारे यहाँ FMD वैक्सीन चल रही है। FMD क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन। ये क्या है? मुंह खोर वाली वैक्सीन। मुंह खोर वाली बीमारी इंतहाई खतरनाक बीमारी है। ये एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम FMD वायरस है, और उस वायरस का ताल्लुक एक जीनस एफ्थो वायरस जीनस से है, और उस जीनस का ताल्लुक एक फैमिली से है। उस फैमिली का नाम है पिकोरना वायरिडी फैमिली। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, ये जरासीम है, इनके भी खानदान होते हैं, इनकी भी फैमिलीज होती हैं। तो ये जो FMD वायरस है, इसकी फैमिली का नाम क्या है? पिकोरना वायरिडी फैमिली। याद रखेंगे, पिकोरना वायरिडी फैमिली। अब इस वायरस का अगर जानवर पे हमला हो जाए, अच्छा ये वायरस हमला करता है हर उस जानवर पर जिसके खुर दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। मसलन भेड़ है, दो हिस्से होते हैं ना खुर के, बकरी के भी होते हैं, गाय के, भैंस के, और किसके होते हैं? ऊंट के होते हैं? नहीं होते ना। तो मुंह खोर वाली बीमारी ऊंटों में ना होने के बराबर है। मेरी इस पे रिसर्च है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PhD जो मैंने की है ना, वो इस टॉपिक पे की है, और उस पे मैंने कैमल्स के सैंपल्स चेक किए हैं, क्या इनमें मुंह खोर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो ना होने के बराबर है। एक आधे जानवर में कहीं हमें एक किस्म का FMD वायरस है ना, उसकी 7 किस्में होती हैं, एक किस्म का वायरस निकल आया था कैमल्स में भी, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत ना होने के बराबर। ठीक हो गया। गधों में नहीं होती है बीमारी, घोड़ों में भी नहीं होती। और इस बीमारी में होता क्या है? पहले भी बताया था, मुंह में छाले बन जाते हैं, खुरों के अंदर छाले बन जाते हैं, खुरों के दरमियान छाले बन जाते हैं, जबान पे, अंदर पूरा मुंह, और पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट, निजाम इन्हजाम, उसके अंदर तक छाले बन जाते हैं। जहां पर ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो झिल्ली होती है मुंह के अंदर, इस झिल्ली के ऊपर सारे छाले बन जाते हैं। और ये जब छाले फटते हैं, बड़ा दर्द होता है, जानवर को खाना पीना छोड़ देता है, मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं, और क्या होता है, और जनाब चलना फिरना भी बंद हो जाता है जानवर, क्योंकि खुरों के दरमियान छाले हैं। ठीक है ना, लंगड़ा के चलता है, और इतना ज्यादा तेज बुखार रहता है जानवर को कि बस वो अधमोया हो जाता है।
ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो उसका जो हमल है वो ज़ाय हो जाता है, एबॉर्शन हो जाती है। तो इस बीमारी के असरात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो 10 लीटर दूध दे रहा है जानवर, वो 2 लीटर पे आ जाता है, और जो दे ही 2 लीटर है उसका तो दूध ही खत्म हो जाता है। और फिर वो आगे हीट में नहीं आता। वो जानवर जिसको मुंह खोर की बीमारी हो जाए, आगे हीट में नहीं आएगा, उठे या नहीं, उठा पे नहीं आएगा, क्या कहते हैं उसको फिर वो आप इंसेमिनेट नहीं करवा सकते, बीज नहीं रखवा सकते, उससे बच्चा नहीं हासिल हो सकता, वो खत्म हो गया जानवर। तो इस बीमारी के बुरे असरात हैं। इस बीमारी के बुरे असरात से बचने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। और वैक्सीन कौन सी जरूरी है? जो काम करे, जो अच्छी हो। क्योंकि मैंने बताया कि इसकी 7 किस्में हैं। इस वायरस की कितनी किस्में हैं? 7। एक का नाम है सीरोटाइप ए, फिर है सीरोटाइप सी, फिर है सीरोटाइप ओ, फिर है जनाब अली सीरोटाइप एशिया 1। सुन रहे हो? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है सेट 1, सेट 2, सेट 3। पाकिस्तान में जो है ना, वो ये ज्यादा है, चौथे नंबर वाली, तीसरे वाली और दूसरे वाली, सॉरी दूसरे वाली नहीं, पहले वाली। ये जो सीरोटाइप सी है ये अब खत्म हो गई है, पहले होती थी पाकिस्तान में। ये जो है ना, अब 3 किस्म के वायरस एफएमडी वायरस की ये जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स में ए, ओ और एशिया 1 ये ज्यादा है पाकिस्तान में। और इन तीनों में भी सीरोटाइप ओ सबसे ज्यादा है वायरस की, ये किस्म ज्यादा है। जो पाकिस्तानी वैक्सीन बनाते हैं उनमें सिर्फ इस सीरोटाइप ओ के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करने वाला जरासीम डालते हैं वैक्सीन में। और क्या होता है, जब एशिया 1 वाला जरासीम आके जानवर पे हमला करता है तो, और सीरोटाइप ए वाला करता है, तो वैक्सीन तो सिर्फ इसके खिलाफ हुई है, ये वाला और ये वाला हमला कर देता है और जानवर बीमार हो जाता है। तो अब क्या किया है, इसका हल ये किया है कि पाकिस्तान वाले क्योंकि इस वैक्सीन को सही तरीके से बना नहीं सकते थे, तो उन्होंने रशिया से मंगवाई है ये वैक्सीन, जिसमें ये तीनों तरह के सीरोटाइप्स मौजूद है, ताकि कुव्वत मुदाफियत सही पैदा हो जानवर में। चलें, ये एक लंबी कहानी है, इसमें आपको नहीं डालते, परेशान नहीं करते आपको। तो इंपॉर्टेंस क्या है एफएमडी वैक्सीन की? इंपॉर्टेंस अब यही है कि क्योंकि ये बीमारी इंतहाई खतरनाक है, इसके नुकसानात मैंने आपको बताया इतने ज्यादा हैं कि एबॉर्शन हो जाती है, बच्चा ज़ाया हो जाता है, बाद में हीट में नहीं आता जानवर, दूध खत्म हो जाता है, अधमोया हो जाता है, कोई बछड़े हैं, कोई कट्टे हैं, वो जनाब अली इंतहाई कमजोर हो जाते हैं, उनका गोश्त ही नहीं रहता, और सेल जब करें तो प्रॉफिट ही नहीं बनता। तो इससे बचने के लिए वैक्सीन करवाएं, और जो आजकल हो रही है और ये होनी चाहिए, इसका फायदा ये होगा कि जानवर सेहतमंद रहेंगे और हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम इन सेहतमंद जानवरों को मुल्क से बाहर भी बेच सकते हैं, इनका गोश्त, और उनकी कीमत 10 गुना ज्यादा होगी। क्योंकि चाइना कहता है हमें जानवर पाकिस्तानी चाहिए, पाकिस्तानी जानवर बड़े सेहतमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चरागाहें बहुत हैं, चारा बहुत है, लेकिन इनका मसला यह है कि इनके अंदर मुंह खोर वाला जरासीम होता है। अगर इनके अंदर मुंह खोर वाला जरासीम ना हो तो हम इनके जानवर ज्यादा कीमत पे लेने के लिए तैयार हैं। तो अब हम बार बार ये वैक्सीन हर 6 महीने बाद कर रहे हैं, ताकि ये जरासीम ही खत्म हो जाए इस इलाके में से,
और इस जरासीम का कोई हमला ही ना हो, आउटब्रेक ना हो, फिर हमारे जानवर कीमती बन जाएं और हम अच्छे 10 गुना ज्यादा कीमत पे जानवर बेच सकें। आप अंदाजा लगाएं, एक जानवर जिसका वजन 2.5-3 मन हो, मंडी पे अगर बेचें तो फैजान आप बताएं उसकी क्या कीमत होगी? बछड़ा 3 मन वाला कितने मन? 3 लाख 10 20 1,10,20,000 इस मंडी पे उसकी कीमत होगी। अगर हम अपनी मंडी पे बेचें 2.5-3 मन वाला जानवर, अगर FMD की वैक्सीन कर करके इस जरासीम को खत्म कर लें और जानवर हमारे FMD फ्री हो जाएं, तो हम ये जानवर चाइना को और कतर, कुवैत, सऊदीया, शारजा, मिडल ईस्ट पूरा इनको बेच सकते हैं। जरब दे दें इसको 10 लाख से, यानी कि 10 से 12 लाख में यही जानवर बिकेगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना। तो ये है इसकी अहमियत, किसकी? FMD वैक्सीन की। ये वैक्सीन करवाएंगे तब बीमारी कंट्रोल होगी, और जब बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तो ये खतरनाक जरासीम खत्म हो जाएगा और जानवर बीमार नहीं होंगे इस बीमारी से। और वो दुनिया चाहती है कि हमें इस वायरस से पाक जानवर दो, हम महंगा खरीदने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों ना करें? करना चाहिए ना। तो हमारा ये रोल है कि हम ये वैक्सीन सही तरीके से अपनी टीमों से करवाएं, और आपका ये रोल है कि आप सही तरीके से अपने वालिदैन को बताएं, वो मिल के जानवर को सही बांध के हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करके अपने जानवरों को टीका लगवाएं, हिफाजती। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, मजीद थोड़ा सा ये है, वो मैंने पहले बता दिया है कि आपका रोल क्या है, तमाम पाकिस्तानियों का रोल क्या है इस जंग में। वही है कि हम मोरली सपोर्ट करें, दुआ करें, अपनी आर्मी के साथ रहें। सोशल मीडिया अगर आप बच्चे हैं यूज करते हैं तो जो कमेंट आर्मी के खिलाफ है उसको वहीं रोकें, उसको हाइड करें, उसको रिमूव करें, उसको डिलीट करें, और अगर जवाब दे सकते हैं उसको जवाब दें कि यार शर्म करो, अपने ही घर को आग लगा रहे हो, अपनी ही आर्मी के खिलाफ बकवास कर रहे हो, अपने ही मुल्क के खिलाफ हो रहे हो, इसका मतलब है तुम ही असल दुश्मन हो। हमें इंडिया से इतना खतरा नहीं है, हम उनको जाके बम भी मार देंगे, तबाह भी कर देंगे। हम अपने बच्चे को क्या करेंगे? जब इन बच्चों को, इन नौजवानों को छितर पड़ते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर रोते हैं, लो जी पाकिस्तान आर्मी जनाब देखो जुल्म कर रही है। तो भाई तू इंडिया का साथ दे रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन है। तो बहरहाल एक मैसेज है, मैसेज ये है बेटा कि अपने घर के साथ मुखलिस हो जाएं। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान में हम सांस लेते हैं, पाकिस्तान में हम जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर काम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान से मुखलिस होना है, इससे मोहब्बत करनी है, इसके लिए काम करना है, इसके लिए कुर्बानी देनी है, इसके लिए हर वक्त तैयार रहना है। जज़ाकल्लाह खैरा। पाकिस्तान जिंदाबाद।